मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम CPM क्रिटिकल पाथ मेथड का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने PERT का अध्ययन किया था। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखते हैं मीनिंग and definition of critical path method. The critical path method is a technique that allows you to identify the tasks that are necessary for the project completion. The critical path is project management is the longest sequence of activities that must be finished on time to complete the entire project. The critical path method is a technique where you can identify the task that are necessary for the project completion and determine schedule flexibilities. A critical path in project management is the longest sequence of activities that must be finished on time in order for the entire project to be complete. Any delay in the critical task will delay the rest of the project. यानी क्रिटिकल जो पाथ मेथड्स है वो हमें ये अलाउ करता है कि जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो अपनी समय पर अनिवार्य रूप से पूरा हो। यदि वह कोई टास्क पूरा नहीं होता है तो एंटायर प्रोजेक्ट पर उसका फर्क पड़ता है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड वह तकनीक है जिसमें हम उस टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए आवश्यक होते हैं। CPM revolves around discovering the most important task in the project timeline, identifying the task dependencies and calculating task duration. इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं जो जरूरी टास्क है। इन टास्क के बिना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया जा सकता। CPM was developed in late 1950s as a method to resolve the issue of increased cost due to insufficient scheduling. Since then, CPM has become the popular for planning project and prioritizing tasks. It helps you break down complex projects into individual tasks and gain a better understanding of the प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब प्रश्न उठता है, व्हाई यूज द क्रिटिकल पाथ मेथड? क्यों हम CPM मेथड का प्रयोग करें? तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण हमें CPM का प्रयोग करना चाहिए। Improves future planning. CPM can be used to compare expectations with actual progress. The data used from current projects can inform future project plan. ये जो CPM मेथड्स है ये ना केवल जिस प्रोजेक्ट में हम उपयोग कर रहे हैं उसके लिए लाभदायक है, बल्कि जो डेटा है वर्तमान का उसका प्रयोग हम भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। More effective resource management. CPM helps project manager prioritize tasks, giving them a better idea of how and where to deploy resources. यानी अधिक जो प्रभावी प्रबंधन है उसकी सुविधा देता है CPM अप्रोच, और किन कार्यों को प्राथमिकता देना है, संसाधनों को कहाँ और कैसे तैनात करना है, इसका बेहतर विचार देता है। नेक्स्ट, helps avoid bottlenecks. Bottlenecks in project can result in lost valuable time. Plotting out the project dependencies using a network diagram will give you a better idea of which activities can and can't run in parallel, allowing you to schedule accordingly. यानी जो CPM अप्रोच है वो बाधाओं में बचने में हमारी मदद करती है।
परियोजनाओं में बाधाओं के परिणामस्वरूप बहुमूल्य समय नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। एक नेटवर्क आरेख का उपयोग करके परियोजना निर्भरता को प्लॉट करना आपको बेहतर विचार देता है कि कौन सी गतिविधि आप एक साथ चला सकते हैं और कौन सी एक साथ नहीं चला सकते, जिससे आप तदनुसार शेड्यूल कर सकते हैं, तदनुसार योजना बना सकते हैं। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पाथ। फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ इन्वॉल्व्स looking at the duration of the critical and non-critical tasks. Below is a breakdown of the step with example. First, list activities. The first step है वो है list activities. तो use a work breakdown structure to list all the project activities and tasks required to produce the deliverables. The list of the activities in the work breakdown structure serves as the foundation for the rest of the CPM. जैसे प्रोजेक्ट का नेम हम एक लिख देंगे और एक तरफ फेज 1 और फेज 2 अलग अलग फेज कर देंगे। फेज 1 में कौन कौन से टास्क करना है, टास्क फर्स्ट, सेकंड, टास्क थर्ड, इसी तरह फेज दूसरे फेज में टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। For example, let's say the marketing team is producing a new interactive blog post. Here are some tasks that might be in the work breakdown structure. जैसे टास्क A, create outline यानी create outline पहला टास्क हो गया। टास्क आईडी इसका A दे दिया, A for टास्क आईडी एंड टास्क का नाम क्रिएटिंग आउटलाइन। इसके लिए ड्यूरेशन 1 दिन का समय माना कि आउटलाइन क्रिएट करने में लगाएंगे। टास्क आईडी V, टास्क है हमारा राइट ड्राफ्ट। आउटलाइन बनाने के बाद हम ड्राफ्ट बनाएंगे, इसके लिए मान लीजिए 5 दिन का समय लगेगा। इसके बाद जो हमने ड्राफ्ट राइट कर लिया है उसको एडिट करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट बनाते समय हो सकता है उस कमियाँ रह गई हैं तो उसको एडिट करेंगे। और इसकी जो टास्क आईडी है वो C, ड्यूरेशन इसके लिए 2 डेज। टास्क आईडी D, इसमें क्या करेंगे, डिज़ाइन पोस्ट विजुअल्स, यानी जो ड्राफ्ट बना है उसके हिसाब से पोस्ट विजुअल्स बनाएंगे। इसके लिए हमने निर्धारित किया है 4 दिन का समय। टास्क आईडी E के लिए टास्क है ऐड एनिमेशंस टू विजुअल्स, ड्यूरेशन 2 डे। एंड टास्क आईडी F, अपलोड पोस्ट, जो पोस्ट बनाई है उसको अपलोड करेंगे, इसके लिए रख दिया 1 दिन। Once you have a high level idea of everything that needs to be done, you can start identifying the task dependencies जो निर्भरता है उसका पता लगाएंगे। सेकेंड स्टेप आ जाता है तो आइडेंटिफाई dependencies based on your work breakdown structure. Determine the task that are depend on one another, यानी एक दूसरे पर कौन से टास्क निर्भर हैं। This will also help you identify any work that can be done in parallel with other tasks, यानी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टास्क किस पर निर्भर है। अगर आप जानकारी हो जाएगी तो कौन से कार्य आप एक साथ कर सकते हैं, कौन से एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी लग जाएगी। जैसे हम देखते हैं टास्क V इज डिपेंड ऑन टास्क A, क्योंकि जब तक आउटलाइन नहीं बनेगी जब तक उसका ड्राफ्ट नहीं बना सकते, इसलिए V जो टास्क V है वो टास्क A पर डिपेंड है। टास्क C इज डिपेंड ऑन टास्क B, क्योंकि B टास्क कह रहा है कि ड्राफ्ट जो तैयार होगा, जब आपका ड्राफ्ट तैयार ही नहीं होगा तो उसको आप एडिट करके फाइनल ड्राफ्ट नहीं बना सकते। इसलिए C इज डिपेंड ऑन B, पहले कच्चा ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए जब भी आपको एडिट और फाइनल कर पाएंगे। टास्क C एंड D कैन रन पैरेलल, ये एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। C एडिट एंड क्रिएट फाइनल ड्राफ्ट एंड डिजाइन पोस्ट विजुअल्स को आप साथ साथ चला सकते हैं। टास्क E इज डिपेंड ऑन टास्क D, जब तक एनिमेशन करके आप इसको करेंगे जब तक ये
ई यानी एड एनिमेशन टू विजुअल्स नहीं आ गए। जब तक विजुअल्स ही नहीं बनेंगे तो उनमें एनिमेशन कैसे जोड़ पाएंगे आप। एंड टास्क एफ इज डिपेंड ऑन सी डी एंड डी। टास्क एफ इन सब पर डिपेंड है, सी और डी, क्योंकि जब तक ये टास्क पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक आप उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। जब तक विजुअल्स तैयार ही नहीं होगा तो उसको अपलोड करें। द लिस्ट ऑफ द डिपेंड टास्क इज रिफर्ड टू as an activity sequence which will be used to determine the critical path. A third, create a network diagram. इसके बाद आप नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करेंगे जब आपको सारे पथ आपको पता चल गया है किस कौन सा काम किस पर डिपेंड है, किस कार्य को आप एक साथ कर सकते हैं और किस कार्य को एक साथ नहीं कर सकते। So the next step is to run the work breakdown structure into a network diagram, which is a flowchart displaying the chronology of activities. Create a box for each task and use arrow to depict task dependencies. You will add other time-bound component to the network diagram until you have the general project schedule figured out. जब आपका ये नेटवर्क डायग्राम क्रिएट हो जाएगा तो चौथा स्टेप आ जाएगा, एस्टिमेट टास्क ड्यूरेशन। टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ द क्रिटिकल टास्क, you first need to estimate the duration of each activity. To estimate the duration, आप क्या ट्राई कर सकते हैं, मेकिंग द एजुकेटेड गैसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज हो उसके आधार पे आप अनुमान लगाएंगे समय का। एस्टिमेटिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रोजेक्ट डेटा, पुराना प्रीवियस डेटा जो होगा उस डेटा को देखकर आप एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड शेड्यूल पहले से भी इस तरह का हो सकता है, उसको देखकर भी आप टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली ट्राई यूजिंग द फॉरवर्ड पास एंड द बैकवर्ड पास टेक्निक। फॉरवर्ड टास्क और बैकवर्ड टास्क तकनीक का उपयोग करके भी आप टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास? तो फॉरवर्ड पास, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट and early finish date by using a previously specified start date. ES यानी early start is the highest, EF यानी early finish value from immediate predecessors, whereas EF is ES plus duration। ES के साथ जितना समय और लग जाएगा वो फिनिश्ड वैल्यू हो जाएगी। द कैलकुलेशन स्टार्ट विद 0 एट द ES ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी एंड प्रोसीड थ्रू द शेड्यूल। डिटरमाइन ES एंड EF डेट्स allows for early allocation of the resource to the project। यानी इसमें जो भी स्टार्टिंग डेट है वो हो जाएगी ES और इसके बाद जितना उस कार्य को पूरा करने में समय लगेगा वो हो जाएगी अर्ली फिनिश EF। तो इसका आप एलोकेशन प्रोजेक्ट का जो रिसोर्सेस है संसाधनों का एक एलोकेशन ES और EF के आधार पर कर सकते हैं। ES जो भी आपका समय है शुरू हो रहा है वहाँ पर आपको रिसोर्सेस उपलब्ध कराने हैं और EF की समाप्ति के बाद वहाँ से रिसोर्स को आप हटा सकते हैं। अब बैकवर्ड पास का है, this is used to calculate late start and late finish dates। LS is LF minus duration, whereas LF is the lowest LS value from immediate successors. The calculation start with the last scheduled activity and proceeds backward through the entire schedule. The early and late start and end date can then be used to calculate
float or scheduling flexibility of each task। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फॉरवर्ड पास है उसमें हम जो अर्ली एक्टिविटीज है, जो स्टार्ट हो रही है जब एक्टिविटी, उसमें जितना समय लग रहा है उसको जोड़ने के बाद हमें अर्ली फिनिश पता चल जाता है। इस तरह EF इक्वल टू ES प्लस ड्यूरेशन, यानी कितना समय लगा, इस तरीके से हम फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। यानी अर्ली स्टार्ट को हम काउंट करते हैं 0 के रूप में, उसके बाद कितना समय लग रहा है उसको काउंट करते जाते हैं और EF में प्राप्त हो जाता है जो फॉरवर्ड पास होता है। बैकवर्ड पास में हम उल्टा करते हैं कि समाप्ति का समय क्या है हम वह देखते हैं, और समाप्ति के समय से जो प्रारंभिक स्टार्ट है, स्टार्ट कब हुआ था उस समय को घटा देंगे, जिससे हमें अवधि प्राप्त हो जाती है। यानी LS इक्वल टू LF माइनस अवधि। इस तरह से हम इसमें उल्टा चलते हैं। यानी बैकवर्ड पार्ट में हम पहले समाप्त कब हुआ है कार्य ये देखते हैं, और जो फॉरवर्ड पास है उसमें हम पहले देखते हैं कब शुरू हुआ है, उसके बाद अवधि देखते जाते हैं। तो बैकवर्ड पास मानिए आगे चलते हैं, बैकवर्ड पास में हम पीछे चलते हैं, फॉरवर्ड पास में हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप है 5वां स्टेप, कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। जब हमें समय पता चल जाता है विलंबित एक्टिविटी क्या है, प्रारंभिक कार्य क्या है, समाप्ति तिथि क्या है, इसके आधार पर हम क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल पाथ कैन बी डन मैन्युअली, बट यू कैन सेव टाइम बाय यूजिंग ए क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम इंस्टेड। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैनुअल के लिए क्या स्टेप होंगे वो उसको हम एक एक से देखते हैं। पहला स्टेप हो सकता है मैनुअल के लिए, राइट डाउन द स्टार्ट एंड एंड टाइम नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी। ईच एक्टिविटी के सामने एंड टू राइट डेट लगते हैं, कब वो प्रारंभ हो रही है, कब वो समाप्त हो रही है। फर्स्ट एक्टिविटी हैज़ ए स्टार्ट टाइम ऑफ 0, यानी जो पहली एक्टिविटी है उसके सामने स्टार्ट टाइम हो जाएगा 0, एंड द एंड टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटी में कितना ड्यूरेशन लग रहा है, यानी ये फॉरवर्ड पास। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट टाइम इज द एंड टाइम ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, एंड द एंड टाइम इज द स्टार्ट टाइम प्लस द ड्यूरेशन। यानी इसमें जो प्रीवियस एक्टिविटी समाप्त हुई थी उसका जो एंड तिथि है, एंड डेट है, एंड टाइम है, वो नेक्स्ट एक्टिविटी का प्रीवियस एक्टिविटी टाइम हो जाएगा, और एंड टाइम प्लस उसमें जो ड्यूरेशन जुड़ जाएगी, यानी फॉरवर्ड पाथ की तरफ हम जा रहे हैं। डू दिस फॉर ऑल एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ के लिए हम ये कर देंगे और सबका टाइम निर्दिष्ट हो जाएगा। यानी जो पहली एक्टिविटी के लिए जो एंड टाइम होगा अगली एक्टिविटी के लिए वो स्टार्ट टाइम हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, look at the end time of the last activity in the sequence to determine the duration of the entire sequence। पूरे सीक्वेंस में कितना समय लगेगा वो देख लेंगे। स्टेप थर्ड में, द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज द क्रिटिकल पाथ। जिसमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा होगा वही क्रिटिकल पाथ होगा। यूजिंग द सेम एग्जाम्पल above here, what are the critical path diagram might be look like। इस तरह से आपको दिख सकता है। टास्क ए में 3 दिन, टास्क 2, टास्क 3, ए डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंट टास्क हैं वो एरो के साथ दिखा रहे हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है वो पैरेलल भी चल रहे हैं। वंस यू हैव द क्रिटिकल पाथ फिगर आउट, यू कैन पुल द एक्चुअल प्रोजेक्ट शेड्यूल अराउंड इट। 6 स्टेप है, 5 स्टेप जब आप पूरा कर लेंगे इस तरह का एक डायग्राम आपको क्रिटिकल पाथ निर्धारित हो जाएगा। तो कैलकुलेट द फ्लोट। फ्लोट का करेंगे। फ्लोट और स्लैक्स refer to the amount of flexibility of a given task. It indicates how much the task can be delayed without impacting the subsequent task or the project end date। यानी फ्लोट क्या है? फ्लोट वह फ्लेक्सिबिलिटी है किसी टास्क की जिसको हम डिले कर सकते हैं और उससे जो प्रोजेक्ट की एंड डेट है, जो कुल समय हमारा लगना है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ऐसा टास्क जिसमें हम कुछ भी देरी कर सकें
1 दिन की देरी कर सकते हैं, 2 दिन की देरी कर सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता चल जाएगी, हम इतनी देर करने के बाद भी समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। फाइंडिंग द फ्लोट इज यूजफुल इन gauging how much flexibility the project has. Float is a source that should be used to cover project risk or unexpected issue that come up. तो ये जो फ्लॉट है वो आपका कुछ कमी आ जाती है उसको ये कवर कर सकता है। क्रिटिकल टास्क है जीरो फ्लॉट। क्रिटिकल टास्क में कोई फ्लॉट नहीं होता, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसको आपको समय पर ही पूरा करना है। विच मीन्स देयर डेट्स आर सेट, इनकी डेट्स क्लियर हैं। टास्क विथ पॉजिटिव फ्लोट नंबर्स बिलोंग इन द नॉन क्रिटिकल पाथ, जो नॉन क्रिटिकल पार्ट होगा वहीं पर आपको पॉजिटिव फ्लॉट मिल जाएगी। मीनिंग दे मे बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम और रिसोर्सेज, नॉन-क्रिटिकल टास्क में बी स्किप्ड। नॉन-क्रिटिकल टास्क है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, जब रिसोर्स नहीं है, टाइम नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग द फ्लोट कैन बी डन विद एन एल्गोरिथम और मैनुअली। यूज द कैलकुलेशंस फ्रॉम द सेक्शंस फ्लो टू डिटरमाइन द टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। इस प्रकार देखते हैं कि टोटल जो फ्लॉट है, टोटल फ्लॉट का अर्थ है कि आपने जो प्रोजेक्ट का शुरू करना है, परियोजना शुरू करना है, उसी समय आपने कितनी देरी कर दी, टोटल फ्लॉट है। और फ्री फ्लॉट क्या है, ये एक्टिविटी चल रही थी, बीच एक्टिविटी में आपने जो देरी की है वो फ्री फ्लॉट कहलाएगा, FF कहलाएगा। अब देखते हैं कुछ अदर एप्लीकेशन ऑफ CPM में। CPM की अदर अप्रोच का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। पहला है कंप्रेस्ड शेड्यूल। नॉट आइडियल, देयर आर टाइम्स व्हेन प्रोजेक्ट डेडलाइंस में बी पुश अप। इन दोज सिचुएशन देयर आर 2 शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स you can use, namely fast tracking and crushing। यानी जो कंप्रेस्ड शेड्यूलिंग तकनीक है ये साधारणतः अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ये परियोजना की जो समय सीमा है कुछ को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए 2 संपीड़न तकनीक हैं, 2 कंप्रेस्ड शेड्यूलिंग तकनीक है जिनका उपयोग कर सकते हैं। एक है ट्रैकिंग और दूसरा है फास्ट क्रशिंग। तो फास्ट ट्रैकिंग और क्रशिंग 2 तकनीक हैं। तो फास्ट ट्रैकिंग क्या है, लुक एट द क्रिटिकल पाथ टू डिटरमाइन एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म्ड सिमल्टेनियसली। रनिंग पैरेलल प्रोसेस विल स्पीड अप द ओवरऑल सिचुएशन। यानी जो फास्ट ट्रैकिंग क्या कह रही है कि आप अपना पूरा क्रिटिकल पथ तकनीक के आधार पर जो क्रिटिकल पथ बना हुआ है उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको एक साथ चलाया जा सकता है, उनको आप एक साथ चलाइए। जब एक साथ चलाएंगे तो प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी आप तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। इसको कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग। दूसरी तकनीक है क्रशिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स allocating more resources to speed up activities before obtaining more resources. Make sure that it would still be within the project scope and let the stakeholders know of any changes. यानी क्रशिंग जो तकनीक है उसमें जो रिसोर्सेस है उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप इस मात्रा को बढ़ा देंगे, जहां आप 10 लोगों को लगाए हैं वहां 20 लोगों को लगा देंगे, और जहां जो संसाधन आप 1 कुंटल दे रहे हैं उसको 2 कुंटल देंगे, यानी जो भी आपका संसाधन है उसको भी दुगना कर देंगे, बर्तन को दुगना कर देंगे। तो इससे भी जो गति है प्रोजेक्ट की वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये प्रोजेक्ट के स्कोप में होना चाहिए और स्टेक होल्डर्स को इसके चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। Resolve resource shortage.
Keep in mind that CPM doesn't take resource availability into account. When there is resource shortage, like an overlooked team member or lack of equipment, you can use resource labeling technique to solve the issue. क्योंकि इसमें अगर आप संसाधन ही समय पर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो प्रोजेक्ट किसी भी तकनीक के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। CPM अप्रोच में रिसोर्सेज को भी जब ये काउंट करेंगे या रिसोर्स आप समय पर उपलब्ध कराएंगे तभी ये काम आ सकती है। तो इसके लिए आप रिसोर्स लेबलिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। दिस तकनीक एम टू रिजॉल्व द रिसोर्स ओवरलोकेशन इशू एंड इंश्योर दैट ए प्रोजेक्ट कैन बी completed with the resources that are currently available। जो भी currently available है उसी के द्वारा इनको पूरा किया जा सकता है। Resource labeling works by adjusting project start and end dates, so you may have to read just the critical path or apply this technique to activities with float। And next, compile data for future use. The schedule created from CPM is subject to change since you are working with educated estimates for activity duration. You can compare the original critical path to the actual critical path as the project run. This data can be used as a reference to get more accurate task duration estimate for future project। तो इसका जो डेटा है उसको आपको भी कंपाइल करके रखना होगा ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट में आप इसका प्रयोग कर सकें और जो पहले का डेटा आपके पास उपलब्ध है उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जिससे आप बेहतर CPM बन पाएगा। इसी के साथ CPM टेक्निक से संबंधित ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो देखने के बाद भी CPM टेक्निक से संबंधित कोई क्यूरी आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी क्यूरी का समाधान कर सकूं और CPM अप्रोच को समझने में आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।